Good morning, everyone. So today we have a session named How to Frame Hypothesis in Research. And before we start the session, I would like to introduce our today's speaker, Dr. Arun Kumar Sharma. He's currently serving as the Assistant Professor in Department of Commerce at the AV College, having 17 years of teaching and research experience. His area of specialization is accounting and finance. He has more than 40 research papers published in journals of repute, chaired various technical sessions in national and international conferences. He is also a resource person in faculty development program. We welcome you, sir. Thank you, madam. Now, I would like to invite Dr. Arun to please start the session. Good morning, everybody. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are. Okay. So we'll start with the topic. I share my screen. Okay, before I start, I would like to know, are there students of biostats? Or some experiences such are also there who are attending the session, so that I can frame my talk accordingly. ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਧਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ 2 ਡੇਢ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ I think all are students here. Hello, Paramjeet Kaur. Hello. Mostly are students here, I think. Students, sir आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई करो. हेलो यस मैम यस मैम परमजीत आप अपना म्यूट कर लेंगे, आपका पीछे से नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा. ओके सॉरी Okay, we start with the hypothesis testing. Hypothesis Yes. testing मेरे ख्याल से अगर बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से. Yes, sir, please start. Okay, so हम will start with the definitions of hypothesis. First of all, meaning of hypothesis. Hypothesis is an assumption which we make about certain phenomena, and that phenomena is normally a population. So before we start, we should know about the population. What is population? What is sample? Okay, so this is a branch of statistics. Hypothesis testing is that branch of statistics which deals with the inferential statistics. Inferential statistics means that statistics which is concerned with drawing inferences about the population on the basis of sample. We draw inferences about the population on the basis of studying certain sample. That is inferential statistics. So hypothesis testing deals with inferential statistics. Okay, then what is sample? What is population? Population means most of the students which I normally teach, they normally tell me population is the number of people in a particular area. But in statistics, population means anything under observation which you are studying. Anything which is whole under consideration. As a whole, you study. Suppose you want to buy anything. Suppose you want to buy fruit from a particular shop. You go to the shop, you see a stack of fruits. That particular stack of fruits is population, and you draw one piece out of it and check it whether what is the quality of the fruit. That particular piece is known as sample.
फाइन. सो व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज होल अंडर कंसिडरेशन. आप कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, आप डेली सैंपलिंग लाइफ अपनी करते हैं, आप मिल्क की क्वालिटी चेक कर रहे हो, आप ग्रेन की क्वालिटी चेक कर रहे हो, वट एवर यू डू, दैट इज पॉपुलेशन. उसका जो एक पोर्शन आप निकालते हो, सिंपल आप घर के अंदर सपोज चावल बनाते हैं, राइस कुक कर लो, ठीक है, राइस चावल बनाते हो, चावल जो कुकर के अंदर चावल है, प्रेशर कुकर के अंदर, दैट होल इज पॉपुलेशन. उसमें से एक पीस निकाल के देखते हो कि हाँ ये तैयार हो गए हैं, नहीं हुए, कच्चे हैं, पक्के हैं, तो जो पीस आपने निकाला दैट इज सैंपल. So sample is a part of population, and population is whole under consideration. So here population means anything which you want to study. Okay, any phenomena about which you want to get an idea about its certain characteristics. That is population. Okay, so in case of hospitals, you treat patients out of certain, say you can say you want to test certain medicine from the patients. So जो आपके जो patients हैं जो आपने लिए हैं, that is your sample. और पॉपुलेशन क्या होगी कि वो सारी पॉपुलेशन, वो सभी पेशेंट्स जिनके ऊपर आप वो उस मेडिसिन को ट्राई करना चाहते हैं, कि जिनके लिए आप मेडिसिन देखना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं. आप ये देखिए कोरोना की टेस्टिंग होती है, वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही थी, जब फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज इनका टेस्टिंग का चला था, उसमें क्या था, वो उन्होंने सैंपल ड्रॉ करते थे. वो सैंपल के बेसिस पे they try to ascertain whether this particular vaccine will be suitable for the general public or not. General public is population here, and the number of persons, or number of patients, or number of volunteers which they were considering for the study, that was sample. So in case of hypothesis testing, we draw sample from the population, we study that particular sample, and on the basis of the results of the sample, we ascertain what will be the result of the पॉपुलेशन. ठीक है, जब आपने वैक्सीन को कुछ पेशेंट्स पे टेस्ट किया, वॉलंटियर्स पे टेस्ट किया, उसके रिजल्ट देखे, तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे आप बताते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के लिए वैक्सीन कैसे काम करेगी, नहीं करेगी, इसके रिजल्ट अच्छे होंगे, नहीं होंगे. ठीक है. सो इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वी ड्रॉ टू type of hypothesis. First type of hypothesis is null hypothesis. So in case of null hypothesis, this definition is very important. If you understand this, suppose you have done 25% of the hypothesis testing. So what is null hypothesis? It asserts that there is no real difference in the sample and the population. Sample means sample statistics. You take any measure of the sample. आप sample का mean निकाल लो, तो वो sample mean है. Population का mean निकालोगे, तो वो population mean है. ठीक है, तो जो population का mean होता है, उसको हम population parameter बोल सकते हैं. जो sample का mean है, उसको हम बोलेंगे sample statistics. So any measure of sample is known as sample statistic. अगर सैंपल का साइज दिखाएं तो सैंपल साइज सैंपल स्टैटिस्टिक है, सैंपल मीन सैंपल स्टैटिस्टिक है. इसी तरह आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, तो वो भी सैंपल स्टैटिस्टिक है. इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन के कोई मेजर्स लेते हैं, पॉपुलेशन मीन है तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर है. पॉपुलेशन का साइज है, दैट इज आल्सो पॉपुलेशन पैरामीटर. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट इज आल्सो पॉपुलेशन पैरामीटर. ठीक है. सो इन केस ऑफ नल हाइपोथेसिस, वी assume or we assert that there is no real difference in sample and the population. Population और sample में कोई difference नहीं मानते हैं. That's why we use the word null. Null means invalid, void, amounting to nothing. कि अगर आपने sample के result check किए और population के result भी check करें, तो दोनों में कोई difference नहीं आ रहा. That is null hypothesis. हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि जो हमने sample के result निकाले, वही population के result होंगे. That is our null hypothesis. ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है सैंपल में और पॉपुलेशन में. अगर बाय चांस कोई डिफरेंस आपको लगता भी है कि सपोज आपने टेस्ट कर रहे हो और टेस्ट करते हुए आपने सपोज रिजल्ट निकाला, एवरेज आई है सैंपल की, रिजल्ट सैंपल का रिजल्ट आया एवरेज आया सपोज 20, और पॉपुलेशन का अगर आप चेक करें तो पॉपुलेशन का आता है 22. तो वो जो डिफरेंस है 20 और 22 का, दैट इज जस्ट बाय चांस, फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग की वजह से. आप एक सैंपल निकालें, हो सकता है 20 आ गया मीन, दूसरा सैंपल निकालें तो हो सकता है 21 आ जाए मीन, तीसरा सैंपल निकाले तो हो सकता है 19 मीन आ जाए. ठीक है, चौथा सैंपल निकालें हो सकता है 23 आ जाए. तो ये मीन क्या कम ज्यादा हो सकता है कि आपने पहले 10 चीजें ली हैं, उनका 10 आइटम्स लिए, उनका मीन लिया, फिर अगले 10 निकालें, उनका मीन ले, तो वो एवरेज कम ज्यादा हो सकती है. तो वो जो सैंपल का रिजल्ट है और जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है, हम ये मान करते हैं दोनों सेम है, पर उनमें जो कोई अगर डिफरेंस आ भी रहा है, if there is any difference, that difference is unimportant, unaccidental है, unimportant है, because of fluctuation of sampling. ये एक सैंपल निकालें तो कुछ रिजल्ट आ सकता है, दूसरे सैंपल निकालें तो कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, that is possible. So because of fluctuation of sampling ये डिफरेंस आते हैं, but otherwise कोई डिफरेंस नहीं मानते हम ये मान के चलते हैं कि सैंपल के रिजल्ट में और पॉपुलेशन के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, so that is null hypothesis. अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेरी हो null hypothesis के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ. अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे alternative hypothesis.
सो नल हाइपोथेसिस अगर आपको पता लगे, नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो जब अगर आपके पास सपोज बायोस्टैटिस्टिक्स का पेपर है या स्टैट्स का कोई भी पेपर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोई भी पेपर है, तो उस पेपर में आपके पास नॉर्मली हाइपोथेसिस टेस्टिंग से बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो नल हाइपोथेसिस में तो हमेशा ही मान के चलना कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर्स बोथ आर सेम, दे आर सेम। तो नल हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए मैं आपको एक दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन, उस पर आपको लिख के दिखाते हैं। नल हाइपोथेसिस, नॉर्मली हम नल हाइपोथेसिस को, मेरी स्क्रीन दूसरी विजिबल है? Yes, sir. नहीं, ये तो पीपीटी है, मैं प्लेन स्क्रीन, मैंने स्क्रीन चेंज किया। अब आप देखिए, मैं इस पे लिख के दिखाता हूँ, शायद आपको विजिबल होना चाहिए। नल हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है नॉर्मली हम इसकी जो नोटेशन होती है, जो आप स्टैटिस्टिक्स में या बायोस्टैट्स में या रिसर्च में यूज करते हो, इसकी जो नोटेशन होती है दैट इज एच नॉट, एच दिस नॉट, ठीक है, जीरो। नल हाइपोथेसिस, दैट इज नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है, इसको हम ऑल्टरनेट को बोलते हैं H1, ठीक है। तो दिस H नॉट इज फॉर नल हाइपोथेसिस, H1 इज फॉर, ये नल हाइपोथेसिस के लिए H नॉट है, ऑल्टरनेट के लिए H1 है, ये नोटेशन यूज होती है, ठीक है। अब जो H नॉट है, H नॉट क्या कहते हैं, सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। सो H नॉट सच दैट, जब इसको लिखेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट को इसे लिखेंगे हम, ये मैं आपको ब्रैकेट में कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। दिस H नॉट सच दैट, ये जो दो डॉट्स लगाएंगे, दिस इज सच दैट। अब हम देखेंगे सैंपल और पॉपुलेशन में कोई फर्क नहीं है, पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मैं एक बार सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर पे आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज आपने साइज की बात कर रहे हो, साइज, साइज ऑफ सैंपल, सैंपल का साइज और पॉपुलेशन का साइज, ये दो अलग अलग हैं। तो सैंपल के साइज को नॉर्मली हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन के साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्टैटिस्टिक साइज के केस में क्या हो जाएगी, स्मॉल एन इज सैंपल स्टैटिस्टिक, कैपिटल एन इज पॉपुलेशन पैरामीटर। सेम वे सपोज आप मीन लेते हो, एवरेज, ठीक है। अगर सैंपल का मीन ले रहे हो तो उसको हम एक्स बार से नोट करते हैं, पॉपुलेशन का मीन ले रहे हो तो आप उसको म्यू से, दिस इज म्यू, ग्रीक लेटर ये एम यू, म्यू ऐसे बोलते हैं, म्यू, ठीक है। यू की तरह शो हो रहा है बट इट इज म्यू, ग्रीक अल्फाबेट है ये, म्यू से डिनोट करते हैं नॉर्मली। आप मोस्ट ऑफ द बुक्स देखेंगे रिसर्च की या स्टैटिस्टिक्स की, उसमें यही नोटेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड नोटेशंस है, ठीक है। इस तरह सपोज आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन आई होप आपको सबको पता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के आप स्टूडेंट्स हो, रिसर्च पढ़ रहे हो। तो इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन उसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, सिंपल जो एस होता है। एनी क्वेश्चन? रोटी दी क्या रही है तू, इन्हें क्लिक कर। ओके, देन पॉपुलेशन जो पैरामीटर है उस केस में हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सैंपल के जो रिजल्ट होते हैं वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, पॉपुलेशन के जो रिजल्ट होते हैं उनको पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं। अब सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ये इतनी सारी कई स्टैटिस्टिक्स, ये तो मैंने सिर्फ 3 एग्जांपल दिए हैं, आप इसके आप वेरिएंस को निकाल सकते हो, आप इनके प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हो, आप इनके रिलेटेड मीन, मीडियन, मोड, कोई भी इनका मेजर ले सकते हो। जितने भी आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े हैं या मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े हैं,
वो सारे के सारे सैंपल के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो सारे के सारे पॉपुलेशन के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो सारे के सारे अगर सैंपल के लिए दे आर कॉल्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, अगर वो आप पॉपुलेशन के लिए स्टडी कर रहे हो दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए और पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए मैं एक नोटेशन यूज करता हूँ कि पॉपुलेशन पैरामीटर को मैंने थीटा से नोटेशन दे दी, थीटा। ठीक है, और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए नोटेशन मैंने यूज कर ली है थीटा हैट। ठीक है, सो ये दो नोटेशन ले ली है मैंने, एक सैंपल स्टैटिस्टिक्स के लिए, एक पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। तो अब जब मैं नल हाइपोथेसिस चेक करूंगा तो मैं सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन के रिजल्ट को कंपेयर करना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि मेरे सैंपल और पॉपुलेशन के रिजल्ट में कोई फर्क है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है, वो नल हाइपोथेसिस में हम स्टडी करते हैं। तो इन दिस केस आवर नल हाइपोथेसिस विल बी सच दैट सैंपल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि आपके सैंपल स्टैटिस्टिक्स में और पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज योर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो एज पर दिस स्टेटमेंट, जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब दोनों सेम हो गए हैं। तो हम इसको नल हाइपोथेसिस को कैसे लिख सकते हैं? सैंपल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, सैंपल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर, ये हमारा हो गया नल हाइपोथेसिस। ये पहला हाइपोथेसिस क्या है? नल हाइपोथेसिस। ये आपको सबसे पहले बनाना चाहिए कि आपके सैंपल के रिजल्ट में और पॉपुलेशन के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी नोटेशन को मैं दोबारा अगर आपको लिख के दिखाऊं, सपोज यहाँ पे h नॉट सच दैट, सपोज अब हम कंपेयर कर रहे हैं सैंपल मीन को और पॉपुलेशन मीन को, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। ठीक है ना, सपोज हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमारा नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? एनीवन हु कैन टेल? अगर हम सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर में सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन को कंपेयर करेंगे तो नल हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे? एनीवन हु कैन रिप्लाई? x bar equals mu. यस, बिल्कुल सही है, x bar is equal to mu, h not such that x bar is equal to mu। ठीक है, जो x bar क्या है? सैंपल मीन है। म्यू क्या है? जो आपने हाइपोथेसाइज कर रखी है पॉपुलेशन की वैल्यू, पॉपुलेशन मीन जिसको आपने हाइपोथेसाइज किया है। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इट इज अपोजिट टू नल हाइपोथेसिस, जो आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि ये इसका ऑल्टरनेट होता है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि सपोज स्टार्टिंग में ही करते हैं अभी यहीं पे, H0 तो हमने देख लिया, H नोट क्या है कि सैंपल स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका अपोजिट क्या होगा? ऑल्टरनेट कैसे बनाएंगे? अपोजिट क्या बनेगा? इक्वल टू का, हाँ जी कोई बता सकते हैं इक्वल टू का अपोजिट क्या हो जाएगा? Not equal to. नॉट इक्वल टू, तो वेरी सिंपल है। तो सैंपल स्टैटिस्टिक इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर, ये एक केस हुआ। नॉट इक्वल टू का वन केस हुआ। इसके अलावा कुछ और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इक्वल टू का अपोजिट तो नॉट इक्वल टू आपने बता दिया है, इसके अलावा इक्वल टू के अलावा, नॉट इक्वल टू के अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है सैंपल और पॉपुलेशन की? या लेस या मोर भी हो सकते हैं। सैंपल का रिजल्ट हो सकता है पॉपुलेशन से कम हो, सैंपल का रिजल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा हो। इज इट क्वाइट पॉसिबल? यस और नो? Yes, sir. सो इन दैट केस हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के तीन ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसमें? H1 such that theta hat is less than theta। ठीक है, और इसके अलावा अनदर ऑप्शन क्या हो सकता है? H1 such that theta hat is greater than theta। यानी कि सैंपल का रिजल्ट पॉपुलेशन के नॉट इक्वल टू हो सकता है, दैट इज फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है? वो लेस देन हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है? वो मोर देन हो सकता है। ये तीन केस बन सकते हैं आपके पास। क्लियर है तीनों केस? Yes, sir. ओके, जो ये आपके पास तीन केस बने हैं,
इनमें से आपके पास एक्चुअल में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कोई एक ही होता है, ये तीनों इकट्ठे नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप रिसर्च की कोई प्रॉब्लम स्टडी कर रहे हो या अपना स्टैट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास या तो नॉट इक्वल टू होगा या लेस देन होगा या मोर देन होगा, इन तरह से नॉर्मली कोई एक ही आप एक टाइम पे स्टडी करते हो, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि ये कैसे पता लगेगा, वो आपके जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस स्टेटमेंट से पता लगता है। उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद बताते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, उस प्रैक्टिस से ही आपको ये स्टेटमेंट्स क्लियर होती हैं कि हाँ जी ये नॉट इक्वल टू का केस है या लेस देन का केस है या मोर देन का केस है। और अगर आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने सही बना लिया तो समझो आपने अपना क्वेश्चन को ऑलमोस्ट ठीक कर लिया। आपके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पे ही आपका रिजल्ट डिपेंड करता है, आपका आंसर इसी पे डिपेंड करता है ऑल्टरनेट पे, क्योंकि नल तो हमेशा सेम ही रहेगा। नल का मतलब क्या है? सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन, इट विल ऑलवेज बी द सेम। चेंज कहाँ पे होता है? ऑल्टरनेट में। ऑल्टरनेट में आपने देखना था कि ये नॉट इक्वल टू का केस है, लेस देन का केस है या मोर देन का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि ऑल्टरनेट में आपने कौन से वाला ऑप्शन लेना है, नॉट इक्वल टू का, लेस देन का या मोर देन का। दिस इज अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और इसके बाद जब आप ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर दोनों क्लियर है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो जी। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नल हाइपोथेसिस में और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है। आई होप सबको क्लियर है। स्टूडेंट्स यस और नो कर दो अगर आपको डाउट क्लियर है तो। यस सर। ओके, हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। अब जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इनमें एक तो डेफिनेशन आती है वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम पढ़ चुके हैं। वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ा होगा, ये मेरी असम्पशन है। आई डोंट नो कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। आई थिंक कि आप सबने पढ़ा होगा, तभी आप रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ रहे हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद ही नॉर्मली रिसर्च मेथोलॉजी आती है। और वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट आपके नॉर्मली हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही, आप जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हो। अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, मोर देन है, इसके बेस पे पता लगेगा कि आपका टेस्ट कौन सा है, ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल्ड टेस्ट है। तो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के लिए पहले आप एक कर्व देख लीजिए, नॉर्मल कर्व। आप सबने पहले नॉर्मल कर्व पढ़ा हुआ है? यस और नो बोल सकते हैं। किसी ने नॉर्मल कर्व के बारे में पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा हो पहले आपने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नो सर। नहीं पढ़ा हुआ? Yes, sir. यस और नो? एक तरफ से यस है, एक तरफ से नो है। यस का मतलब पढ़ा हुआ पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, sir. ओके, गुड। तो फिर आपने ये नॉर्मल कर्व भी देखा होगा। इट इज लाइक दिस, ये शेप होती है इसकी। Yes, sir. okay, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बेल शेप होता है, ठीक है। इसकी जो सेंटर वाली लाइन है इसको दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के अंदर। और इसकी जो टेल्स होती हैं वो इनफाइनाइट टेल्स होती हैं, कभी टच नहीं होती हैं बहुत। इनका लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो ये टेल्स हैं, दिस टेल एंड दिस टेल, लेफ्ट टेल और राइट टेल, ये दोनों टेल्स जो हैं ये कभी टच नहीं होती है, इनडेफिनिट इनकी लेंथ होती है, ठीक है। एक दूसरे क्लोज आती जाएंगी बट कभी टच नहीं करेंगी, एक दूसरे बेस को भी टच नहीं करेंगी, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। हाइपोथेसिस में आपने क्रिटिकल रीजन के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्रिटिकल रीजन के बारे में पढ़ा होगा आपने कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है। क्रिटिकल रीजन इज दैट एरिया in which if your computed value falls you reject your null hypothesis, आप अपना null hypothesis को रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन नॉर्मली, अब ये देखिए कि आपको क्रिटिकल रीजन क्या होगा। यहाँ पे क्रिटिकल रीजन वो एरिया है जहाँ पे, अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पूरे का पूरा क्या पता है आपको, प्रोबेबिलिटी बताता है। इसमें पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो पूरे को प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बता सकते हैं क्या हो सकती है, मैक्सिमम और मिनिमम। Anyone who can tell what is the maximum and minimum value of a probability? Probability की वैल्यू, हाँ जी, और मिनिमम क्या सकती है, 0. जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि बिल्कुल नहीं होगा चांस होने का, और 1 का मतलब क्या है कि 100% है वो चांस उस इवेंट में होना ही होना है। 1 का मतलब 100% श्योरिटी है कि आप ये होगा ही होगा, और 0 का मतलब 0% चांस है, मतलब इसमें इवेंट में होना ही नहीं है, ठीक है, अगर 0% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इन दिस केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल एरिया क्या होता है, इसको हम 1 ही मानते हैं, और जो इसका जो सेंटर है, सेंटर दोनों को, पूरे कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कितना पोर्शन होगा, Half. हाफ, हाफ मींस 0.5, और राइट साइड में भी 0.5, हाफ, ठीक है। तो 50% लेफ्ट साइड पे आ गया, 50% राइट साइड पे आ गया, और जो इसके एरिया होता है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं कि उस किसी की होने की या ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि इस हाइपोथेसिस के सही या गलत होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, और प्रोबेबिलिटी हम चेक करते हैं, और प्रोबेबिलिटी हमें किससे पता लगती है, हमारे कॉन्फिडेंस से। हमारा कॉन्फिडेंस कितना है हमारे हाइपोथेसिस के ऊपर, ठीक है। अगर आप सपोज आप सिंपल एक जनरल लैंग्वेज में बात करें कि आज की डेट में चंडीगढ़ के अंदर स्नोफॉल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आज की डेट में शाम तक चंडीगढ़ में स्नोफॉल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। 0. कुछ भी जीरो। आपको लगता है कि आज की डेट में स्नोफॉल तो होगा ही नहीं, वेदर की कंडीशन आप देख रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आज की डेट में स्नोफॉल होगा, आपने बोला कि 0 प्रोबेबिलिटी है। आप कितने % श्योर हैं अपने स्टेटमेंट के लिए, चंडीगढ़ में आज स्नोफॉल होगा, आप इसके लिए कितने % श्योर हैं, 100% श्योर है, 100%. 100% श्योर है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस 100% है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर 100% श्योर दैट टुडे विल नॉट बी रेन। अच्छा, अब आज की डेट में चंडीगढ़ के अंदर 10 mm से ऊपर बारिश हो सकती है, 10 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो सकती है, कितने % श्योर है, 0.5. 0.5% श्योर है, मतलब 0.5 का मतलब क्या है, परसेंट है, 0.5 50%, 50%. कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ओके ओके, 50% आप श्योर हैं, 50% आप श्योर हैं कि बारिश हो सकती है 10 mm से ऊपर, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगले 2 घंटे के अंदर बारिश होगी, कितने % चांस है, अगले 2 घंटे Less के than अंदर बारिश होगी, 50%. लेस देन 50%, लेस देन 50%, एक एग्जैक्ट नंबर ले ले इस लेस देन को बताइए। 35%. 35% चांस है कि अगले 2 घंटे के अंदर बारिश होगी, तो इसका मतलब यू आर 35% श्योर अबाउट योर स्टेटमेंट, 65% यू आर नॉट श्योर, ठीक है। तो जो आपकी श्योरिटी है, यानी कि आप अपनी स्टेटमेंट के लिए कितने श्योर हैं, वो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो एक टर्म आती है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जो वो आपका कॉन्फिडेंस की आप कितने % श्योर हैं, और जितने % आप श्योर नहीं है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अनदर टर्म है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब आपकी स्टेटमेंट गलत होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज अल्फा, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके स्टेटमेंट के सही होने के कितने चांस हैं, आप कितना अपने आप को श्योर मानते हैं, दैट इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. स्टेटमेंट गलत होने के चांस आपके ये अल्फा, स्टेटमेंट के सही होने की 1 माइनस अल्फा, ये दो ही है, या तो आपकी स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी। सिंपल, आपको आपने उस एग्जांपल से भी देख लिया, हमने सिंपल अपने जनरल बुक्स का तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, सिंपल जनरल जो अपने रूटीन के चीजें देखते हैं उसी के बेसिस पे हमें पता लगा कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके हाइपोथेसिस के
गलत होने के क्या चांस है, और इसके सही रहने के क्या चांस है, 1 माइनस अल्फा। सो अब जो ये अल्फा के बेसिस पे आप देखते हैं कि जो अल्फा क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग इट, आपकी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये अल्फा जो है, ये एरिया नॉर्मली इसके कर्व के एक्सट्रीम पे आता है, या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या दोनों साइड पे। और दोनों साइड पे कब आएगा, जब ये नॉट इक्वल टू हुआ। नॉट इक्वल टू का मतलब ये लेस भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन, वो आपने नल हाइपोथेसिस में अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में आपने अज्यूम कर रखा है सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन, ठीक है। ऑल्टरनेट में अगर आपका फर्स्ट वाला दिस वन ये लेके चल रहे हैं, अगर आप नॉट इक्वल टू अ केस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में, ठीक है, तो इन दैट केस नॉट इक्वल टू कब होगा, इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर, वो नॉट इक्वल टू केस होगा। क्लियर है, नॉट इक्वल टू Yes, का मतलब sir. क्या होगा, नॉट इक्वल टू मीनिंग तो ये हुआ ना, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इन दैट केस जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी, जो इसका अल्फा है, अल्फा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अल्फा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो लेस वाले पोर्शन में भी जाएगा, वो मोर वाले पोर्शन में भी जाएगा, ठीक है। इसका जो नॉर्मल कर्व होता है, इसका जो सेंटर होता है, इसको हम 0 मान के चलते होते हैं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट साइड पे अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा इधर, इसका पेंसिल का हम चेंज करते हैं कलर ताकि याद रहे आपको ध्यान से, माइनस अल्फा बाय 2 और इधर प्लस अल्फा बाय 2। जो आपके जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फा है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है नॉट इक्वल टू के केस में। और इसका मतलब आपका जो क्रिटिकल रीजन है, ये एरिया इधर भी हो सकता है, ये एरिया इधर भी हो सकता है। तो अगर आपने जो वैल्यू कंप्यूट करते हो, इसमें हम नॉर्मली एक वैल्यू कंप्यूट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर, ठीक है। उस कंप्यूटेड वैल्यू को हम देखते हैं कि इस कर्व के अंदर वो कहाँ फॉल करती है, ठीक है। वो वैल्यू कैसे कंप्यूट होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो वैल्यू कंप्यूट करते हैं हम उसको चेक करते हैं कि वो इस कर्व के अंदर कहाँ फॉल करती है, ठीक है। अगर वो इस क्रिटिकल रीजन में, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ पे या ये एरिया यहाँ पे फॉल कर जाए, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो यहाँ पे फॉल नहीं करती है और सपोज सेंटर में फॉल कर जाती है, सपोज इस एरिया के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इसमें फॉल करती है, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं। सो दिस एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और जो ये बीच का एरिया है सेंटर, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। क्रिटिकल रीजन भी बोल सकते हैं इसको हम, इसके अलावा रिजेक्शन रीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन भी है और रिजेक्शन रीजन भी है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो सेंटर का एरिया ये है, इसको हम बोलेंगे हम एक्सेप्टेंस रीजन। यहाँ पे अगर आपकी कंप्यूट की हुई वैल्यू फॉल करे, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसको, नल हाइपोथेसिस को। हमने नल हाइपोथेसिस को क्या करना है, रिजेक्ट या डोंट रिजेक्ट, आइदर वो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और वही डोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो वो उसके लिए हमारे पास अल्फा बाय 2 आ गया, ये टू टेल टेस्ट के केस में, दिस इज कॉल्ड टू टेल। अब ये यहाँ पे देखिए आपका जो रिजेक्शन रीजन है दोनों टेल में आ गया, लेफ्ट टेल में भी आ गया और राइट टेल में भी आ गया, इसलिए हम इस टेस्ट का नाम लेते हैं टू टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल टेस्ट है ये। और ये कैसे पता लगा हमें, हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेस पे। जब आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू का केस होगा, तो इन दैट केस आपके पास रिजेक्शन रीजन जो है दोनों साइड में आ जाएगा। जब रिजेक्शन रीजन दोनों साइड में आ गया, तो ये टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट कब होगा, जब आपका नॉट इक्वल टू वाला केस होगा, दैट इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक टू टेल टेस्ट के बारे में, या रिजेक्शन रीजन या, ओके। सो अब हम दूसरे टेस्ट लेते हैं।
बाकी ये 2 टेस्ट। ठीक है, अब इन केसेस के अंदर हमारा रिजेक्शन रीजन हम चेक करेंगे कहाँ फॉल करता है। तो मैं इन दोनों को अलग से नीचे पहले लिख देता हूँ। आपके पास एक केस आ गया H1 such that theta hat is less than theta, यानी कि सैंपल की वैल्यू पॉपुलेशन की वैल्यू से लेस है। नाउ इन दिस केस अगर हम कर्व तैयार करते हैं तो आप कर्व पे मुझे बताएंगे कि रिजेक्शन रीजन इस कर्व की कौन सी टेल पे होगा, लेफ्ट टेल पे होगा या राइट टेल पे होगा। ये लेस देन का केस है, आपने मुझे ये बताना है कि इसमें आपका रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा। लेस वाला ना, यहाँ पे 0 है, 0 के लेफ्ट साइड वैल्यूज क्या होंगी और राइट साइड वाली वैल्यूज क्या होंगी। हाँ जी, 0 से लेफ्ट वाली साइड values नेगेटिव Yes, एंड राइट और साइड right side पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड -1 2 3 यानी कि और कम होती जाएंगी वैल्यू। ठीक है, लेस वाली वैल्यूज कहाँ जाएंगी, लेफ्ट साइड पे, और मोर वाली वैल्यूज किस साइड पे जाएंगी, Right side. राइट साइड पे। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे बताइए कि ये लेस देन का एग्जांपल है कि आपके सैंपल की वैल्यू पॉपुलेशन की वैल्यू से कम है। तो इन दिस केस आपका रिजेक्शन रीजन लेस वाली साइड पे होगा या मोर वाली साइड पे होगा। Left वाली side. लेफ्ट। लेफ्ट वाली, बिल्कुल सही है। तो ये आपका लेस वाली साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट सारे का सारा रिजेक्शन रीजन एक ही साइड पे आएगा, यानी कि अल्फा एक ही साइड पे आएगा। ये हो गया माइनस अल्फा, ये अल्फा बाय 2 नहीं होगा। यहाँ पे अल्फा बाय 2 ऊपर किया था हमने पहले वाले में, क्यों किया था, क्योंकि उसमें दोनों साइड पे डिवाइड हुआ था रिजेक्शन रीजन। यहाँ पे एक ही साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। तो दिस इज वन टेल टेस्ट। अभी इसकी टेल कौन सी है, इसकी लेफ्ट टेल है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। ठीक है, ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। इसमें रिजेक्शन रीजन आपका क्रिटिकल रीजन, ये दिस इज क्रिटिकल रीजन, इसको हम रिजेक्शन रीजन भी बोल सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे है, और जो दूसरे वाला है ये बीच, बाकी का एरिया ये सारे का सारा क्या है, एक्सेप्टेंस एरिया। ठीक है, दिस इज लेफ्ट टेल टेस्ट। इसी तरह सपोज अगर हम ले लें H1 such that थर्ड केस theta hat is greater than theta, यानी कि सैंपल वैल्यू is greater than population parameter. So in this case अब आपका रिजेक्शन रीजन किस साइड पे आएगा बताइए। बोल रहे क्या, मैं यही हूँ, एक दूसरी ले संभाला हूँ ना अकेले। Right. ऊपर वाली। तो हमने लेट कर क्या करना है। ओके, ये राइट साइड पे आ गया। Rima ma'am, please So this mute is everyone. right tail test. हाँ जी सर, मैंने म्यूट कर दिया सबको। जी, thank ओके, राइट टेल टेस्ट आ गया। सो आपका क्रिटिकल रीजन यहाँ पे राइट साइड पे आ गया। ठीक है, आपका अल्फा यहाँ पे पॉजिटिव या राइट साइड पे है। ठीक है, सो रिमेनिंग एरिया इज योर एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन हो गया आपका। सो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा टेस्ट है, ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट यानी कि अगर आपका ये दिस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ही आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आप कौन सा टेस्ट रन कर रहे हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नल हाइपोथेसिस तो हमेशा इक्वल टू वाला ही केस है। ऑल्टरनेट में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें कौन से वाला एग्जांपल है हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, नॉट इक्वल टू का है, लेस देन का है, मोर देन का है, हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, कौन सी कंडीशन है। हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या बता दी हमारे को, रिसर्च प्रॉब्लम में हमने इसको नॉट इक्वल टू के हिसाब से टेस्ट करना है, या लेस देन के हिसाब से टेस्ट करना है, या मोर देन के हिसाब से टेस्ट करना है। ठीक है, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के बेसिस पे डिपेंड करे, रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे फिर आपका टेस्ट डिसाइड होगा कि आपका टेस्ट आपके रिसर्च के हिसाब से टू टेल टेस्ट है या वन टेल टेस्ट है। और वन टेल में भी आप चेक करें कि वो लेफ्ट टेल है या राइट टेल है। वन टेल के अंदर भी दो तरह के टेस्ट होंगे ना, कि लेफ्ट टेल एक राइट टेल टेस्ट। तो दिस इज द वे यू विल डिसाइड अबाउट द टेस्ट।
ठीक है। इसके अलावा एक और जो डेफिनेशन है आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, जब तक ये डेफिनेशंस आपको नहीं आएंगे तब तक आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग की डेफिनेशंस बड़े बेसिक्स ही हैं, बड़े ध्यान से समझनी है आपने। अगर ये डेफिनेशंस आपको समझ आ जाती हैं, सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं, तो टेस्टिंग प्रोसीजर बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर टेस्टिंग प्रोसीजर में आप कभी गलती नहीं करोगे, टेस्ट में कभी गलती नहीं करोगे, ये गारंटी है। पर अगर ये डेफिनेशंस, ये पॉइंट्स अगर आपको नहीं क्लियर है, तो आप सीधा टेस्टिंग प्रोसीजर पे चले जाओगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करना शुरू कर दोगे, आपके गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल एक टाइप 1 और टाइप 2 एरर जल्दी से बता देता हूँ कि अब हम डिसीजन लेते हैं विद रिगार्ड टू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड हम डिसीजन लेते हैं, और आपका जो नल हाइपोथेसिस हो सकता है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। null hypothesis can be true and it can be false, ठीक है। null hypothesis it can be true, it can be false, और इसके लिए आप डिसीजन क्या ले सकते हो, एक साइड पे हम डिसीजन लिख सकते हैं, आइदर यू रिजेक्ट इट और यू डोंट रिजेक्ट इट, ये डिसीजन हो सकते हैं। नल हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर रहे हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो आपका नल हाइपोथेसिस इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, या तो ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है, ठीक है। आपकी जो अजम्पशन है वो सही होगी या गलत होगी, और आप डिसीजन के लेते हो, आप या तो उस अपनी अजम्पशन को, अपनी स्टेटमेंट को, अपने हाइपोथेसिस को या तो आप रिजेक्ट करोगे या आप रिजेक्ट नहीं करोगे, ये दो कंडीशंस है आपके पास, ठीक है। तो दो तरह के डिसीजन हो सकते हैं, दो तरह की कंडीशन हो सकती है। कंडीशन हो सकती है, कंडीशन 1 इट कैन बी ट्रू, कंडीशन 2 इट कैन बी फॉल्स। डिसीजन आप दो ले सकते हो, आइदर यू रिजेक्ट इट और यू डोंट रिजेक्ट इट। अगर आपकी स्टेटमेंट गलत है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्ट करना चाहिए, यानी कि अगर फॉल्स है और फॉल्स है आपका नल हाइपोथेसिस, तो यू विल रिजेक्ट इट, तो इसका आपका डिसीजन क्या हो जाएगा, करेक्ट डिसीजन। अगर सही है तो आप रिजेक्ट करोगे या नहीं करोगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, you will, if it is true you don't reject it, again it is correct decision। बट अगर सही होने पे उसको आपने रिजेक्ट कर दिया, सही होने पे अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज योर Wrong decision। रॉन्ग डिसीजन, इट इज टाइप 1 एरर, आपने गलती कर दी है, इट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। एक मिनट, इसके लिए हम कलर चेंज करते हैं ताकि देखने में थोड़ा इजी रहे। दिस इज टाइप 1 एरर, ठीक है। और अगर फॉल्स है और फिर भी आपने रिजेक्ट नहीं किया, तो दिस इज टाइप 2 एरर। ये भी गलती है ना, यहाँ पे भी आप गलती कर रहे हो, दिस इज टाइप 2 एरर, ठीक है। क्लियर? Yes sir। ओके, सो जो टाइप Yes, 1 sir। एरर है, जो टाइप 1 एरर है, दैट इज अल्फा, ठीक है। ट्रू है और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज अल्फा, और दिस इज 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ट्रू है पर आपने रिजेक्ट नहीं किया, ट्रू होने पे अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो अल्फा है, रिजेक्ट नहीं किया तो वो 1 माइनस अल्फा है। इसी तरह से दिस एरर, सेकंड एरर, इट इज बीटा, ठीक है। सेकंड एरर इज बीटा, आपकी गलत है, आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, दैट इज बीटा। अगर गलत है और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड 1 माइनस बीटा, और 1 माइनस बीटा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट 1 माइनस बीटा होती है, ठीक है। सो आपकी पावर ऑफ टेस्ट जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसका मतलब आपका टेस्ट उतना बढ़िया है,
तो ये कुछ टर्म्स हैं, हो सकता है आपको अभी समझ ना आए, बट जब आप एक बार न्यूमेरिकल कर लेंगे, टेस्टिंग प्रोसीजर पे चले जाएंगे, तब आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें समझ आएंगी। अब मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे जो हमने अल्फा और 1 माइनस अल्फा लिया है, दिस corresponds to the level of significance and level of confidence also. बिल्कुल भाई, बिल्कुल केस, ये जो हमने पहले पढ़ा है, ये दिस वन वही है, ये अल्फा और 1 माइनस अल्फा, यानी कि आपका स्टेटमेंट सही होने पे आप उसको अगर रिजेक्ट करते हैं तो ये आपका अल्फा और 1 माइनस अल्फा, यानी कि उसको रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, ओके सर। ओके, मैं आपको टेस्टिंग प्रोसीजर पे अब एक बार दोबारा ले जाता हूँ। सो अब हमने टेस्ट भी कर लिए, क्या क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर भी देख लिए हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और क्रिटिकल रीजन हम देख चुके हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी बता दिया, पावर ऑफ टेस्ट, ये सारी डेफिनेशन हमने आपको बता दी हैं। हालांकि हमने अभी पढ़ी है, आपने हो सकता है पहली बार ये चीजें सुनी हो, तो अभी हो सकता है सारी चीजें आपको याद भी ना हो, बट स्टिल आप इसको अब इस लेक्चर के बाद अपनी बुक वगैरह से टैली करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको जल्दी समझ आ जाएंगी ये चीजें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको समझने में। तो अब हम टेस्टिंग प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं जरा जल्दी से। एक्चुअल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग काफी लंबा टाइम लगता है इसमें, और लेक्चर्स भी काफी लगते हैं, पर 1 घंटे के अंदर ये होना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको सिंपली एक टेस्टिंग प्रोसीजर बता देता हूँ कि सबसे पहले हम टेस्ट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका काम ये होगा, आपने सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस, पहला स्टेप सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस, आपने हाइपोथेसिस को सेट करना है। आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस सच दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा हैट। यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है, जो आपका रिजल्ट आया है, और थीटा हैट का मतलब जो आपने वैल्यू हाइपोथेसाइज किया है। आपने नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने पहले थीटा हैट को कुछ और लिखा था, थीटा कुछ लिखा था, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल ये क्या है कि जो थीटा हैट यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन है। आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर, एक मिनट, स्क्रीन आपको शो हो रही है, स्क्रीन पर स्क्रीन नहीं विजिबल है, मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं आपको? पर विजिबल है। पीपीटी नजर आ रही है आपको? नो सर। पीपीटी नहीं नजर आ रही है? एक मिनट, मैं दोबारा करता हूँ इसको स्टॉप करके। पीपीटी नजर आ रही है? No, sir. ओके, मुझे लगता है मैं अपने लैपटॉप से एग्जिट होकर मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हमारे पास और कितना टाइम है अभी? Sir, you can take your time, no issues. ओके, थैंक यू। ज्वाइन कर रहा हूँ। मैम ये स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड ही है। Let me check, sir.
सर एक बार चेक करना भी। हाँ जी हो गया, आप हो गया। हाँ जी, आपको टेस्टिंग प्रोसीजर नजर आ रहा है शायद। Yes, it's visible now. ओके, सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस, ये पहला आपका स्टेप है। इन केस ऑफ सेटअप ऑफ हाइपोथेसिस, आपने पहले नल हाइपोथेसिस लेना है। नल हाइपोथेसिस सच दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा हैट। यहाँ पे थीटा हैट का मतलब है आपने जो वैल्यू हाइपोथेसाइज की हुई है पॉपुलेशन की है, ठीक है। सो पॉपुलेशन की वैल्यू को हाइपोथेसाइज जो आपने किया है वो आपका थीटा हैट है और सैंपल का रिजल्ट आपका थीटा है, ठीक है। सो आपका सैंपल और पॉपुलेशन का रिजल्ट सेम है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, ये तीन केस मैंने आपको करवाए हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या लेस देन। इन तीनों में से कोई भी एक केस हो सकता है आपका, ठीक है। तीनों में से कोई एक केस होगा, आइदर नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन। तो अगर नॉट इक्वल टू है तो आपका टू टेल टेस्ट है, लेस देन या मोर देन है तो वन टेल टेस्ट है। तो वन टेल टेस्ट में भी एक राइट टेल हो सकता है, एक लेफ्ट टेल हो सकता है। लेफ्ट टेल कौन सा होगा, लेस देन वाला, और मोर देन वाला होगा राइट टेल टेस्ट। तो आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस को लिखना है, आपकी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, H0 और H1। उसके बाद आपने अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है। नॉर्मली जो हम सोशल साइंसेस की प्रॉब्लम्स लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो मेरा जो फील्ड है वो सोशल साइंसेस का है, कॉमर्स का है, ठीक है। चाहे वो साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, या इस तरह के और जो फील्ड्स हैं, उन सब के अंदर नॉर्मली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 5% या 10% दिया जाता है। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना परसेंट हो जाएगा बताइए। अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 1% है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना, सॉरी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना हो जाएगा, 99%। 99, बिल्कुल सही है। अगर आपका 5% अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 95%। 95। मतलब आप 95% कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्टेटमेंट से, ठीक है। 5% आपको एरर के चांस है कि आप 5% चांस है कि आप गलती कर सकते हो, गलत हो सकते हो। इस तरह अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना हो जाएगा, 90%. 90%, ठीक है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने डिसाइड करते हैं। ये अब जैसे खासतौर से हमारी मेडिकल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपके पास एरर का इतना चांस नहीं होता, आप इतनी एरर को अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लाइफ और डेथ का क्वेश्चन है। सोशल साइंसेज में आप ये इस तरह के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले सकते हैं, बट जहाँ पे आप मेडिकल डिवाइसेस तैयार कर रहे हो, ठीक है, इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास इतनी एरर के चांस नहीं होते। कि अगर सपोज आप वेंटिलेटर तैयार कर रहे हो और प्रोडक्शन में आप चेक कर रहे हैं कि आपका जो आपने प्रोडक्शन की है वेंटिलेटर्स की वो कितने सही है, या आप सिरिंज तैयार कर रहे हो, सिंपल एक सिरिंज भी तैयार कर रहे हो, नीडल जो तैयार कर रहे हो, उस नीडल में आपकी कितनी एक्यूरेसी है, आप कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हो, उस मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। इस तरह के, या आप सपोज ये नासा का या ये एटॉमिक कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तैयार कर रहे हो, तो वहां पे आप इतना ज्यादा एरर अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे तो आपका एरर बहुत ही माइनर होगा, पॉइंट जाके बहुत माइनर पे, तो बहुत कम वहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको रखना पड़ता है। आपकी एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी 90% एक्यूरेसी से काम नहीं चलेगा, 95% एक्यूरेसी, इवन 99% एक्यूरेसी भी काम नहीं करेगी, जहाँ पे लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की रिसर्च में एंगेज है। वो सोशल साइंसेस का रिसर्चर है, वो मेडिकल फील्ड का रिसर्चर है, वो डिफेंस का रिसर्चर है, किस टाइप का, किस एरिया का रिसर्चर है, उस पर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंड होता है, ठीक है। नॉर्मली सोशल साइंसेस के अंदर ये 1%, 5%, 10% हम लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करने के बाद आपका क्रिटिकल रीजन डिसाइड होगा। क्रिटिकल रीजन में आप ये चेक करें कि आपने रिजेक्शन या रिजेक्शन एरिया कहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ये तीन तरह के क्रिटिकल रीजन नजर आ रहे हैं, और इन तीनों को अगर हम देखें, आप अपने उन कर्व से कंपेयर कर सकते हैं जो कर्व मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे। चलो मैं ये आपको बाद में दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूंगा, पर एक बार टेस्टिंग प्रोसीजर आप देख लीजिए पूरा, ठीक है। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक वो हम कैलकुलेट करते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो कि आपको मैंने बताया था कि हम कंपेयर करते हैं वैल्यू, एक वैल्यू कंप्यूट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कर्व के अंदर कि वो कहाँ वो फॉल करती है। वो जो वैल्यू कंप्यूट करनी है उसका जो मेथड है वो ये है नॉर्मली टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। मैंने इसको टी से डिनोट किया हुआ है, टी फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक इज इक्वल टू
थीटा एस मीन्स सैंपल की जो वैल्यू है माइनस थीटा हैट जो आपने पॉपुलेशन की वैल्यू को हाइपोथेसाइज किया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ थीटा एस। इनके मीनिंग यहाँ पे देख लीजिए। थीटा का मतलब क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर। थीटा हैट का मतलब क्या है? हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। और थीटा एस क्या है? सैंपल स्टैटिस्टिक, ठीक है। और जो ये नीचे आया हुआ सिग्मा डाल के थीटा एस, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। इसके भी कैलकुलेट करने के आगे फॉर्मूला ये कि आपको जनरल प्रोसीजर बता रखा है। टेस्टिंग प्रोसीजर का मैंने जनरल मेथड बता रखा है कि आप किसी भी तरह का टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एनी टेस्ट कैन बी कंडक्टेड विद दिस मेथड। चाहे वो आप सैंपल वन सैंपल मीन का कर सकते हो, चाहे आप डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेक कर सकते हो। कई तरह के टेस्ट है इसमें, वेरिएंसेस को चेक कर सकते हो। उन सब के लिए एक ये जनरल टेस्टिंग प्रोसीजर है। तो ब्रीफ में मैंने आपको बताया, और इसको एक बार मैं थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्रिटिकल रीजन आप कैसे चेक कर सकते हैं, और टेस्ट स्टैटिस्टिक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बार दोबारा से कंटेंट शेयर करता हूँ। देखिए क्रिटिकल रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे माइनस टू टेल टेस्ट केस है, इट वाज माइनस टी अल्फा बाय 2, इट इज लेस देन sorry greater than t, it is greater than plus t अल्फा बाय 2। ये टू टेल टेस्ट केस में यूज होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और ये कहाँ पे यूज होगा? इन दिस केस। स्क्रीन पे ये नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइनस अल्फा बाय 2 है, जब आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे क्रिटिकल रीजन, तो ये टी माइनस टी अल्फा बाय 2 हो जाएगा, और ये प्लस का टी अल्फा बाय 2 हो जाएगा इधर का। और टी की वैल्यू अगर यहाँ बीच में फॉल करती है एक्सेप्टेंस रीजन में, यू विल नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर आपकी टी कंप्यूट की हुई वैल्यू यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेगा। मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं। यस, यहाँ पे आपके दोनों साइड पे क्रिटिकल रीजन आ गया, ठीक है। ये क्रिटिकल रीजन आपको वैल्यूज चेक करनी चाहिए टेबल से, टेबल वैल्यू जो इसको नॉर्मली बोलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस का टी अल्फा बाय 2, और राइट साइड पे आ जाएगा प्लस का टी अल्फा बाय 2। एंड दिस इज द केस ऑफ टू टेल टेस्ट, ठीक है। अगर आपकी कंप्यूट की हुई वैल्यू, जो वैल्यू आपने कंप्यूट की है दैट इज टी, ये आपने कंप्यूट की है टेस्टिंग प्रोसीजर के हिसाब से, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बताया था, टी इज इक्वल टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा था, दैट इज टी इज इक्वल टू थीटा एस माइनस थीटा हैट अपॉन सिग्मा ऑफ थीटा एस, ठीक है। सैंपल वैल्यू माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। जो ये जो चीज है इसको मैं आपको बताता हूँ, इट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसका भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो हम अलग अलग टाइप ऑफ टेस्ट के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला यूज होते हैं, बट अदरवाइज ये जनरल प्रोसीजर है आपका टी की वैल्यू कैलकुलेट करने का। सो ये जो ये टी की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वो यहाँ पे आएगी,
इसको आपने क्रिटिकल रीजन से कंपेयर करना है। और जो क्रिटिकल रीजन की जो ये वैल्यूज हैं आपको टेबल से पता लगती हैं, आपके पास टेबल वैल्यूज आती हैं, जैसे Z टेस्ट होता है, T टेस्ट होता है, F टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो उनकी अलग अलग टेबल्स होती हैं। उन टेबल से आपको ये अल्फा वैल्यूज मिलती हैं, अल्फा बाय 2 की जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है, ठीक है, चाहे वो अल्फा की वैल्यू है चाहे अल्फा बाय 2 की वैल्यू है, वो सारी की सारी वैल्यूज आपको टेबल से मिलेंगी। उन टेबल से ये वैल्यूज को यहाँ पे आप नोट कर लोगे कि माइनस की वैल्यू क्या है, प्लस की वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर आपने जो कंप्यूट की है ये वैल्यू, दिस कंप्यूटेड वैल्यू, इसको कंपेयर करोगे आप। नाउ इफ योर कंप्यूटेड वैल्यू इज मोर देन, इफ t is more than plus t alpha by 2, if t value is more than t alpha by 2 मतलब फिर वो कहाँ पे फॉल करेगी। सपोज ये कंप्यूट की हुई वैल्यू, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। सपोज ये वैल्यू आती है, यानी एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए ये आती है 2.58 प्लस की, और ये आती है माइनस की 2.58। आपने टेबल से चेक किया और ये वैल्यू आई है आपके पास, और आपने जो t की वैल्यू कंप्यूट की है यहाँ पे, सपोज ये आपने कंप्यूट की है वैल्यू, ये आई है वैल्यू 3.01 प्लस की। नाउ अब बताओ t की वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, t अल्फा बाय 2 के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, कहाँ फॉल कर रही है, 2.58 से ज्यादा या कम है। दिस वैल्यू कंपेयर करो इन दोनों के साथ, कम है या ज्यादा है, कहाँ पे फॉल कर रही है, क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है कि एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन, कौन से वाले क्रिटिकल रीजन, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, राइट साइड। राइट राइट पे, बिकॉज आपकी जो कंप्यूट की वैल्यू है ये है 3.01, और आपने टेबल से चेक की जो वैल्यू ये आ रही है प्लस की 2.58, तो 3.01 प्लस का 2.58 से ज्यादा है, तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल किया। तो इसका मतलब अब नल हाइपोथेसिस को आप क्या करोगे, विल यू रिजेक्ट इट और नॉट। नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर गया है। आपकी कंप्यूट की हुई वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल की है, इसलिए आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। We will reject our null hypothesis because it falls in critical region, ठीक है। ये सिंपल टेस्टिंग प्रोसीजर है, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर सपोज यही वैल्यू मान लीजिए 3.01 की बजाय होती, मान लीजिए ये वैल्यू 2.01 प्लस का, अब बताइए नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, कि क्रिटिकल रीजन में फॉल कर दी कि नहीं कर दी, पहले तो ये चेक करो। एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी। ये एक्सेप्टेंस रीजन आपका, ये रीजन है, ठीक है। अब सिंपल तरीका ये, यानी कि अगर आपकी टी की वैल्यू प्लस टी अल्फा बाय 2 से ज्यादा है तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, वो आपका क्रिटिकल रीजन है। इसी तरह से अगर आपकी टी की वैल्यू माइनस टी अल्फा बाय 2 से, मान लीजिए आपकी कंप्यूट की भी वैल्यू आती है माइनस का 3.01, माइनस का 3.01, अब बताओ ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही, दिस वैल्यू माइनस 3.01 लेफ्ट साइड के क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी। फॉल कर रही है, तो नल हाइपोथेसिस क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करें या नहीं करें, रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करेंगे। तो दिस इज द मेथड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, ये तरीका है। तो अगर आपकी टी की वैल्यू माइनस टी अल्फा बाय 2 से कम आ गई, यानी कि माइनस की वैल्यू दिस इज माइनस 2.58 और आपकी वैल्यू कंप्यूट की हुई है माइनस का 3.01, तो माइनस का 3.01 माइनस के 2.58 से कम है, ठीक है ना। माइनस तो जितना आप बढ़ते जाते हैं वो उतना कम होता है, -2 -3 को कंपेयर करें तो -3 इज लेस देन -2, तो सिंपल है। अगर आपकी कंप्यूट की हुई वैल्यू ये माइनस वाले साइड से कम आ जाए तब भी क्रिटिकल रीजन है, अगर आपकी कंप्यूट की हुई वैल्यू प्लस वाली साइड से ज्यादा आ जाए तब भी आपका क्रिटिकल रीजन है। तो यही हमने क्रिटिकल रीजन चेक किया था ना आपके, उसमें आपने जो देखा था पीपीटी में। तो दिस इज द वे वी डिसाइड अबाउट द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और इस क्रिटिकल रीजन का यही यूज है, हमारे को नल हाइपोथेसिस को चेक करने में हेल्प करता है, whether we should reject it or we should not reject it. This is the testing procedure. सिंपल तरीके से बताया। इसके अलावा आपके पास Z टेस्ट, T टेस्ट, F टेस्ट, हाई स्केयर टेस्ट, कई तरह के टेस्ट आते हैं, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ये बात मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। कोई क्वेश्चन हो तो अभी यहाँ पे आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसको यहीं पे ब्रेक करेंगे, बाकी तो फिर आपके नेक्स्ट क्लासेस का काम है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी पूछ सकते हो आप।
No, sir. ओके, नहीं है तो चलिए ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे ओवर करते हैं। चलिए ठीक है, अब आप इसको एक बार पढ़िए, स्टडी करिए। वाइंड अप करते हैं। Thank you, Dr. Arun, वेलकम for sparing your valuable time. And on my personal behalf and on behalf of the ICMR Center for Innovation and Biodesign, Chandigarh, sir, the way you have explained the entire process, how to frame it, how to go for the calculations, all that is highly appreciable. So most of the time, what is happening? The experts used to go through the PPTs and all, but the use of both the techniques, board writing as well as the use of the PPTs, I personally feel that it is an value addition to all the participants. Sir, the way you explained all these things with the practical, in the practical form with the numerical figures, again, it is an value addition to all of the participants, sir. So I feel honored to propose the vote of thanks to my dear colleagues and my younger brother, Dr. Arun Kumar Sharma ji. As Ma'am Rima told in the beginning that Dr. Arun Kumar is an eminent scholar, and I know his level of teaching and his area of interest and all. So I personally requested to Dr. Arun Kumar to come in these sessions. Sir, we will be again disturbing you, and because the way you explained this, and the students must be having certain other queries. So in near future, again, we will be inviting you for the another more sessions. And I am thankful to all the coordinators, all the participants. The one highly appreciable things which I observed during this session, that was the participation from the side of the students and the scholars. So number of the scholars have the very good interactive session, and I extremely happy with all these things. And I congratulate to all the participants, all the organizers, and especially to my dear colleagues, Dr. Arun Kumar Sharma ji. Thank you very much, sir. I'm honored, sir. Honored. Thank you. Sir, Thank you so much, sir. thank you. Thank you. Okay, so let's finish.